Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our 10th video lecture of Physics second year online classes phase 3 from Ikram Faz Boys College. And we are discussing MCQs revision in this series. And up to now, Alhamdulillah, we have completed 4 chapters. This is our chapter number 15, second part, electrical measuring instruments. Some of its MCQs we have done in the last lecture, the previous lecture number 10, and the other remaining MCQs we will do today inshallah of this chapter. So before moving on, I want to remind again the formulas of the chapter. I hope you have watched the previous lecture in which I have completely described and discussed about these formulas, especially and primarily of the galvanometer, ammeter and voltmeter. And I have also discussed about its terminologies used in these formulas, that what do they stand for and what is their purpose. So we move forward. So as an overview, I like to give you some summary of this chapter. That galvanometer, it is used to detect and measure a small amount of current, you know as well. And this is the formula of galvanometer: I current, C constant, and AB number of turns, area of coil, magnetic field, theta means twisting angle. So theta upon I is the factor which is known as sensitivity of a galvanometer. And if we want to increase it, we should have we should increase any one of these parameter, that is either number of turns or area of the coil or magnetic field of the coil. And if we want to increase sensitivity of galvanometer, then we should decrease this parameter, that is constant C. And if we want to convert a galvanometer into either an ammeter or a voltmeter, we have to attach, we have to connect, we have to combine our low shunt resistance with galvanometer in order to convert it into an ammeter. And we have to combine or connect high series resistance with galvanometer in series combination in order to convert it into a voltmeter. As we all know, ammeter is used to measure the value of current and voltmeter is used to measure voltage or potential difference. And these 2 points are really important regarding the MCQs, that if you want to use ammeter or voltmeter, we have to connect ammeter with circuit in series connection in order to calculate or measure the accurate current. And we have to connect voltmeter with circuit in parallel connection. You have to learn these two notes or these two important points. Okay, and again these are the formulas of ammeter and voltmeter. You all know about these terms, that is RS is low shunt resistance, Ig is current, galvanometer current, Rg is galvanometer resistance, I means ampere range, Ig means galvanometer current. Similarly here in the voltmeter formula, Rx means high series resistance and V means where voltmeter range, Ig means galvanometer current and Rg means galvanometer resistance. So we move on to the MCQs. Okay, I hope you have understood these all concept of these chapters, and if you don't, you should watch the last lecture about this chapter. सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कुछ एमसीक्यूज की सेल्फ प्रैक्टिस। एमसीक्यूज मैंने आपके सामने रखे। सबसे पहले जो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर के मुतालिक एमसीक्यूज होंगे, सो गौर से इन्हें सुनिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहता रहूँगा, बताता रहूँगा, तो उसको अपने पास ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम इस चैप्टर में ख़ास तौर पे 3 टॉपिक्स पर ही बात करेंगे, गैल्वेनोमीटर और
एम मीटर और वोल्ट मीटर, जो कि सिलेबस में आपकी कंडेंस सिलेबस में इस साल शामिल है। इसके अलावा जो टॉपिक्स है आप उनकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लें और उनका पर्पस पढ़ लें, तो ताकि ई कैट के लिए आपको आसानी हो जाए। नंबर 1 पे है, अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड। एमीटर भी आप कह सकते हो होगा और गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन आया हुआ है, तो डिटेक्शन का मतलब है कि वो जाहिर सी बात है करंट को डिटेक्ट करता है, तो करंट डिटेक्ट करने वाली डिवाइस या उसको स्मॉल अमाउंट में मेजर करने वाली डिवाइस को गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं। हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन बहुत माइनर अमाउंट करंट को मेजर कर सकते हैं। बड़ी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हमें एमीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नंबर 2 पे वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स अपॉन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉइल, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द कॉइल, मास ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। तो जो वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स अपॉन, तो गैल्वेनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे बेस करता है, तो वो बेस करता है ना तो मास ऑफ द कॉइल पे कि कॉइल का कितना मास है, इस बात पे उसका कोई मदार नहीं होता। एरिया ऑफ द कॉइल पे भी उसका मदार नहीं होता। उसका मदार होता है कि कितना कॉइल घूम रहा है, कितना घूम रहा है कॉइल, वो इसका मदार होता है। करंट फ्लो होता है कॉइल के अंदर और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगती है, फोर्स लगने की वजह से वो कॉइल घूमता है। ये सारी कहानी आपने चैप्टर नंबर 14 में आई थिंक पहले पढ़ी होगी। तो मैं आपके सामने हल्का सा एक इसका एक सीन बता दूं कि एक कॉइल है अगर, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है जी, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है एन, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जब इस कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जो कि एन से निकल के साउथ में जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल मौजूद है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पर एक फोर्स लगाएगी। इसको हम कहते थे आई एल बी साइन थीटा, आपको याद होगा। उस फोर्स से क्या होगा, ये कॉइल रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो जितना कॉइल रोटेट करेगा उतना ही हम यहाँ पे एक अदद पिन लगा देते हैं या इस तरह स्केल लगा देते हैं, पॉइंटर लगा देते हैं, और गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन पे वो पॉइंटर मूव करता है, तो हमें उसकी मेजर मूवमेंट से पता चल जाता है कि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। और ये भी पता चल जाता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर छोटा सा थोड़ी अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी मेजरमेंट हमें गैल्वेनोमीटर से पता चल जाती है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो गैल्वेनोमीटर तबाह हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस होता है कि अगर कोई कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस पर फोर्स लगेगी, फोर्स लगने की वजह से वो रोटेट करेगा, घूमेगा, घूमने की वजह से उस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो है घूमना कॉइल का, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द कॉइल, कितना ज़्यादा वो घूम रहा है, जितना ज़्यादा कॉइल घूमेगा उतना ही ज़्यादा उसमें रीडिंग शो होगी गैल्वेनोमीटर पे। नंबर 3 है, गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द। अब गैल्वेनोमीटर की कहानी मैंने आपको बता दी तो आपको ये समझ आ जाएगी कि उसमें क्या होता है। उसमें क्या कोई केमिकल इफेक्ट हो रहा है, क्या हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से गलत हो गए। लेगा ये दोनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक। तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक का बुनियादी फर्क ये समझ लें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि करंट फ्लो हो रहा है किसी कॉइल में से, तो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल मौजूद है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर एक फोर्स लगाएगी। और यहाँ पे यही हो रहा होता है गैल्वेनोमीटर के केस में, कि एक कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर फोर्स लगाएगी, फोर्स लगने की वजह से वो रोटेट करेगा, तो यहाँ पे ये वाला इफेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, नंबर 4 पे करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज inversely proportional to angle of deflection, independent of the coil, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा उतनी ज़्यादा उसमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आएगी, उतना ज़्यादा कोई रोटेट करेगा, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नंबर 5 पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज गिवन बाय। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आपने पीछे पढ़ लिया, वो सी अपॉन नैप के बराबर होता है, आई इज इक्वल टू सी अपॉन नैप थीटा। ठीक है जी, और इसके अलावा नंबर 6 पे है गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव बाय मेकिंग द वैल्यू ऑफ फैक्टर सी अपॉन नैप। अब ये एक फैक्टर है सी अपॉन नैप, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं पेपर में। आपने सेंसिटिविटी का फार्मूला पढ़ लिया, थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू नैप अपॉन सी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं सी अपॉन नैप, तो आप इसको लिख सकते हो थीटा अपॉन
आई, सीटा अपॉन आई का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो नैब है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये बन जाएगा, इसको इस तरह आप लिख लें, सी अपॉन नैब। ठीक है, तो अब ये जो सी अपॉन नैब का फैक्टर है ये डिनोमिनेटर में आ गया पूरा। अगर आपने सेंसिटिविटी बढ़ानी है, इसका मतलब आपने इस डिनोमिनेटर के फैक्टर को रिड्यूस करना होगा, जब भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो सी अपॉन नैब का फैक्टर आपने रिड्यूस करना है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल, इसको स्मॉल कर देंगे अगर हमने गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना है। नंबर 7 पे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए, नंबर ऑफ टर्न्स। तीनों को बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, या तीनों में से कोई एक बढ़ा दें फिर भी बढ़ जाती है, तो ऑल ऑफ देम। I is equal to C upon B and a theta. Hence, to increase the sensitivity of a galvanometer, we must decrease the value of C. हमने अभी पढ़ लिया, थीटा अपॉन आई जो सेंसिटिविटी है उसमें C नीचे आ रहा है, इसको हमें कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, इसके बाद है नंबर 9, यूनिट ऑफ हीट लीस्ट काउंट ऑन अ गैल्वेनोमीटर स्केल रिप्रेजेंट्स अ डिवीजन। एक डिवीजन शो कर रहा होता है, कोई यूनिट इसके अलावा शो नहीं कर रहा होता है गैल्वेनोमीटर का स्केल। नंबर 10 पे है आपके पास, when coil of the galvanometer in equilibrium then the deflecting couple। अगर गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल है जो कि रोटेट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उससे क्या होता है, जो डिफ्लेक्टिंग कपल होगा वो बराबर हो जाएगा रिस्टोरिंग कपल के। डिफ्लेक्टिंग कपल का क्या मतलब है कि अगर कोई एक चीज़ है जो कि राइट साइड पे मूव कर रही है और नीचे उसके स्प्रिंग लगा हुआ है, तो वो उसको वापसी घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग कपल का मतलब है राइट साइड पे घूमना, और रिस्टोरिंग का मतलब है उसको वापसी लेफ्ट साइड पे घुमाना। तो अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसका मतलब दोनों कपल बराबर होते हैं, ना वो चीज़ लेफ्ट पे जा रही होगी ना वो राइट पे जा रही होगी। इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एमीटर के टॉपिक पे। नंबर 11, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर ऑफ measurement of current is called ammeter. Number 12, a galvanometer is converted into an ammeter by connecting a suitable low resistance in parallel। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। Number 13, to convert a galvanometer into an ammeter, the shunt resistance is given by, इसका फार्मूला आपको पता है, IGRG upon I minus IG। नंबर 2 पे जो फार्मूला लिखा है। Number 14, in order to increase the range of ammeter, shunt resistance is decreased। shunt resistance जितनी कम से कम होगी उतना ही एमीटर एक्यूरेट होगा और उसकी रेंज बढ़ेगी। Number 15, in a circuit ammeter is always connected in सीरीज। एम मीटर जब बन जाता है तो उसको अगर किसी सर्किट से कनेक्ट करना है और उस सर्किट की वैल्यू निकालनी है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम उसको सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि सीरीज में दोनों में करंट सेम हो जाए। नंबर 16 पे, a good ammeter is one which can measure both alternating and direct current, has very small internal resistance, has very high internal resistance, has linear scale of measurement। तो आपको पता है कि एम मीटर के लिए ज़रूरी है कि जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम से कम हो, हैज़ वेरी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना वो अच्छा एमीटर होगा। नंबर 17, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होती है वो जाहिर सी बात है वोल्ट मीटर होती है। नंबर 18, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी सीरीज। अगर गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो उसके साथ जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे यानी गैल्वेनोमीटर के साथ, वो सीरीज में लगाएंगे, और वो रेजिस्टेंस भी कौन सी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना चाहिए, तो वो गैल्वेनोमीटर फिर एम मीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, नंबर 19 पे, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, द हाई रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, हाई रेजिस्टेंस जिसे आर एक्स कहते हैं उसका फार्मूला क्या है, वो आपको पता है, आर एक्स इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये फार्मूला होता है हाई रेजिस्टेंस का, इसको हम सीरीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये 1000 या उससे ज़्यादा मल्टी थाउजेंड के फॉर्म फॉर्म में होती है, यानी बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी हाई वैल्यू होती है सीरीज रेजिस्टेंस। जबकि जो शंट रेजिस्टेंस होती है जो कि एम मीटर बनाने में इस्तेमाल होती है वो बहुत लो वैल्यूज होती है, वो पॉइंट्स में होती है। नंबर 20, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। जिस तरह एम मीटर में शंट रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वोल्ट मीटर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा हो जाए।
नंबर 21 पे है इन अ सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। आपको पता है वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसी सर्किट में अगर हमने वोल्टेज को मेजर करना है तो हमने वोल्ट मीटर को उस सर्किट के साथ पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ताकि उस सर्किट का जो वोल्टेज है पैरेलल में होने की वजह से वोल्ट मीटर में भी वही वोल्टेज आ जाए। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैरेलल। नंबर 22 है अ गुड वोल्ट मीटर इज वन विच कैन मेजर बोथ एसी एंड डीसी, मींस अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ये तो हो नहीं सकता, वोल्ट मीटर करंट मेजर नहीं करता। हैज़ लीनियर साइड ऑफ मेजरमेंट, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई होना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताएंगे कौन सा होगा। कौन गुड वोल्ट मीटर कौन सा होगा जिसकी इनपुट इंटरनल रेजिस्टेंस होगी या हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है जी, अब हम मजीद कुछ एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है जी, हम मजीद कुछ एमसीक्यूज करते हैं जो कि न्यूमेरिकल टाइप्स हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले है अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर्स इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ohms। आपको करंट गिवन है आई 10 मिली एम्पियर यानी 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पियर्स, और आपको रेजिस्टेंस गिवन है आर 10 किलो ohms। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने मालूम करना है। तो आपको ये बात पता है कि आई 10 मिली एम्पियर का मतलब ये होता है कि आई है 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पियर, और जो वी है यानी वोल्ट सॉरी जो आर है जो कि रेजिस्टेंस है, वो आपको पता है कितने गिवन है यहाँ पे, 10 किलो ओम्स यानी 10,000 ओम्स। और आपने वी मालूम करना है, तो वी आप इज इक्वल टू आई आर कर दें, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है अ वायर कैरीज अ चार्ज ऑफ 90 कूलम इन 1 मिनट। आपको चार्ज पता है क्यू, क्यू इज इक्वल टू 90 कूलम, और आपको टाइम पता है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। आपने करंट मालूम करना है, तो आपको करंट का फार्मूला याद होना चाहिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू है 90 और टाइम है 60, आंसर आ जाएगा 1.5 है। ठीक है ना? ए मीन्स एम्पियर। इसके बाद दो और एमसीक्यूज हैं। अ बैटरी इज रेटेड एट 10 एम्पियर आवर्स, कूलम्स ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी आर। वो कह रहे हैं कि एक बैटरी है जिसका रेट है 10 एम्पियर आवर्स, आप कूलम ऑफ चार्ज बताएं। यानी इस दफा आपको इन्होंने, आप गौर करें तो ये 10 एम्पियर ये क्या चीज़ है, करंट, और आवर ये क्या चीज़ है, टाइम। तो आई और टी दोनों इन्होंने दिए हुए। आई है आपके पास 10 एम्पियर और टाइम है आवर से मुराद 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपको आई भी पता है टाइम भी पता है, आपने क्यू निकालना है, तो आप इसी फार्मूले से आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से क्यू निकाल सकते हो। आई और टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू आ जाएगा। आखिरी जो एमसीक्यू है आज के लेक्चर का, कि व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड, यानी आपने आर एस मालूम करना है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस। आपको आर जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस पता है, विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 2 एम्पियर करंट। आपको करंट यानी आई जी पता है। ठीक है, सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू एम मीटर ऑफ 10 यानी आपको रेंज भी पता है आई, एम मीटर की रेंज आई भी पता है आपको, आर जी और आई जी दोनों पता है, और आर एस शंट रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी है। आप इसका फार्मूला लगा लें, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये आपको सॉल्व कीजिएगा और आंसर इसका अपने पास ज़रूर लिख लीजिएगा। उम्मीद है आपके चैप्टर क्लियर हो गया, वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।